شاہدہ 16-17 سال کی ایک حسین و جمیل لڑکی تھی۔ اس کا تعلق مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ اس کا باپ ریلوے میں کلرک بھرتی ہوا تھا اور حالات بتا رہے تھے کہ وہ کلرک کی حیثیت ہی سے ریٹائرڈ ہو جائے گا۔ اس کا تعلق ان مردوں میں ہوتا تھا جو حالات کی چکی میں پس پس کر جمالیاتی حسن کو خیر بات کہہ چکے ہوتے ہیں اور ہر کام مشینی انداز میں کرتے رہتے ہیں۔ غصہ اور چڑچڑا پن ان کی شخصیت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی موجودگی ان کے ساتھ رہنے والوں کو ہر وقت ایک ذہنی اذیت سے دوچار رکھتی ہے۔ وہ خود پر سختی اور بدمزاجی کا ایک ایسا خول چڑھا لیتے ہیں کہ لوگ ان سے کسی بھی قسم کی باتیں کرنے سے گریزاں رہتے ہیں۔ شاہدہ کا باپ سخت طبیعت کا ضرور تھا، مگر گھریلو معاملات میں دلچسپی لیتا تھا۔ جو کچھ کماتا تھا بیوی کے ہاتھ پہ لا کر رکھتا تھا۔ اسے بیوی اور بیٹی سے محبت تو بہت تھی، مگر وہ اظہار نہیں کرتا تھا۔ شاہدہ نے جب یہ کہا کہ وہ میٹرک کے بعد اپنی تعلیم جاری رکھے گی تو اس نے دفتر سے قرض لے کر کالج میں اس کا داخلہ بھی کروا دیا تھا۔ شاہدہ کی ماں بھی اپنے کام سے کام رکھتی اور شوہر سے دوسری بیویوں کی طرح گھل مل کر نہیں رہتی تھی۔ اس کی یہ وجہ بھی تھی کہ وہ اس سے زیادہ باتیں کرنا پسند نہیں کرتا تھا اور اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ اس کے اس نامناسب رویے کی وجہ سے اس کے آفس کے حالات تھے جہاں بہت زیادہ ملازموں کی وجہ سے ترقی کے آثار معدوم تھے۔ سالوں ہو گئے تھے اور ابھی تک اس کی پروموشن کے دور دور تک آثار نہیں تھے۔ اخراجات بڑھتے جا رہے تھے اور تنخواہ وہیں کی وہیں تھی۔ باپ کے رویے کی وجہ سے شاہدہ بھی اس سے بات کرتے ہوئے جھجکتی تھی اور وہ گھر میں ہوتا تو وہ سر پہ دوپٹہ ڈالے خاموشی سے کسی کام میں لگی رہتی۔ شاہدہ کو اپنی غربت اور کم مائیگی کا بہت احساس تھا۔ اس کی سہیلیاں اور آس پڑوس کی عورتیں اس کی خوبصورتی کی تعریف کرتی تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی کہ کاش اس کا باپ پیسے والا ہوتا۔ اس غربت بھرے ماحول میں رہنے کے باوجود وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اس کی بھی ایک وجہ تھی، وہ دوسری لڑکیوں کو دفتروں اور مختلف اداروں میں کام کرتا دیکھتی اسے ان کے ٹھاٹ پاٹ نظر آتے۔ وہ اونچی ہیل کے سینڈل پہنے کھٹ کھٹ چلتی پھرتی نظر آتی اور گٹ پٹ انگلش بولتی تو اس کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوتی کہ اسے بھی ایسا ہی بننا ہے۔ وہ کسی پر ظاہر تو نہیں کرتی تھی، مگر یہ حقیقت تھی کہ وہ احساس کمتری کا شکار ہو گئی تھی۔ اسے اپنی غربت، اپنا ماحول اور ذرا ذرا سی چیزوں کے لیے ترسنا بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس نے جیب خرچ سے پیسے بچا بچا کر ایک موبائل بھی خرید لیا تھا۔ یہ موبائل نہایت چھوٹا سا تھا، فنکشن بھی کچھ نہیں تھے۔ نمبر ملا کر کسی سے بات کر لو یا پھر FM ریڈیو سن لو، اس کے لیے بھی یہ غنیمت تھا۔ اس نے اپنا نمبر اپنی چند گہری سہیلیوں کو بھی دے دیا تھا۔ محلے میں اس کی ایک بچپن کی سہیلی بھی تھی اور اس کا نام فرخندہ تھا۔ دونوں ساتھ ہی کھیل کود کر بڑی ہوئی تھی۔ فرخندہ کا باپ نہیں تھا اور ماں نے ایک دھاگا بنانے کی فیکٹری میں نوکری کر کے اسے پالا تھا۔ میٹرک کرنے کے بعد وہ بچوں کے ایک اسکول میں بطور ٹیچر بھرتی ہو گئی تھی۔ کچھ ماہ پہلے اس کی ماں اچانک بیمار ہو کر چل بسی تھی اور اب وہ اس دنیا میں بالکل تنہا تھی۔ اپنی اپنی مصروفیات کے باوجود دونوں اب بھی وقت نکال کر کبھی کبھی ایک دوسرے سے مل لیا کرتی تھی۔ آج بھی وہ عید کی کچھ شاپنگ کرنے مارکیٹ گئی تھی۔ شاپنگ کر کے وہ گھر لوٹی تو ماں نے اسے کھانا نکال کر دیا۔ وہ ابھی کھانے سے فارغ بھی نہیں ہوئی تھی کہ موبائل پر ایک اجنبی نمبر سے کال آئی۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ اٹینڈ کرے کہ نہ کرے۔ اس نے بات نہیں کی۔ کھانا کھا کر وہ تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے بستر پر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اسی نمبر سے پھر کال آئی۔ اس مرتبہ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اوکے کا بٹن دبا دیا۔ دوسری طرف سے کسی نے نہایت نرمی اور مہذب انداز میں کہا، شاہدہ پلیز میری بات سنے بغیر فون بند نہیں کرنا۔ اس نے جلدی سے فون بند کر دیا۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ اتنی خوفزدہ ہو گئی تھی کہ اس نے فون کو ہی آف کر دیا۔ فون کرنے والے کا لہجہ رہ رہ کر اس کے ذہن میں گونج رہا تھا۔ وہ حیران تھی کہ وہ کون تھا جسے اس کا نام بھی معلوم تھا۔ اس کی تو آج تک کسی لڑکے سے بات چیت بھی نہیں ہوئی تھی، نہ اپنوں میں نہ غیروں میں۔ پھر اس لڑکے کو اس کا نمبر کیسے ملا؟ اس کے پاس ان سوالوں کے جوابات نہیں تھے۔ وہ کب تک فون بند رکھتی؟ رات کو کسی سہیلی سے بات کرنے کے لیے اس نے موبائل آن کر لیا۔ پھر اس نے بات ختم کی ہی تھی کہ اسی نمبر سے پھر فون آ گیا۔ اس نے سوچا کہ کال اٹینڈ کر لے، مگر اس کی ہمت نہ ہوئی۔ اسے اپنی کئی سہیلیاں یاد آئیں۔ گھر والوں سے چھپ کر ان کی بھی لڑکوں سے دوستی تھی اور سب کی سب ان دوستیوں پر بہت خوش تھیں۔ شاہدہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ وہ سب لڑکیاں بولڈ تھیں۔ اس خیال کا آنا تھا کہ اس نے بھی بولڈ بن جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے یہ بھی سوچا
कि कौन सा वो उसे फोन पे खा जाएगा। मालूम तो करना चाहिए हजरत कौन है और कितने पानी में है और क्या चाहते हैं। उसने कॉल अटेंड कर ली। इसके बाद ये सिलसिला चल पड़ा और 2-3 दिनों में ही उसे पता चल गया कि उसका नाम नासिर है और उसने शाहदा को किसी मार्केट में देखा था। शाहदा के जहन में ये बात आ ही नहीं सकी कि उससे पूछे कि उसका मोबाइल नंबर कैसे पता चला। उसने ये भी बताया कि वो एक अमीर बाप का बेटा है और उसके कारोबार में हाथ बटाता है। उसने जब उसे पहली मर्तबा देखा था तो वो उसे इतनी अच्छी लगी कि उसने सोच लिया कि उसी से शादी करेगा। शादी की ख्वाहिश कोई बुरी बात नहीं थी। शाहदा ने उस बात का बुरा नहीं मनाया, मगर अपने तहीं उसने एक बड़ी अकल की बात कर दी। शादी ब्याह कोई गुड़िया गुड्डे का खेल नहीं। मैंने कौन सा आपको देखा है जो आपसे शादी कर लूं। उसके कहने की देर थी। अगले रोज वो उसके कॉलेज पहुंच गया। उसकी छुट्टी से कुछ देर पहले उसका फोन आ गया। मैं कॉलेज के गेट के सामने ब्लैक कलर की गाड़ी में बैठा हूँ और दुआ कर रहा हूँ कि तुम्हें पसंद आ जाऊं। ना पसंद आया तो फिर मेरे सामने खुदकुशी के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। मैं सच कह रहा हूँ, कहो तो कसम खा लूं। शाहदा सन्नाटे में आ गई। वो इतनी अहम है कि कोई उसके लिए खुदकुशी करने पर भी तैयार हो सकता है। उसकी एक क्लास फेलो करीब आ गई थी। उसने मजीद कुछ कहे फोन बंद कर दिया। छुट्टी के बाद वो गेट से बाहर निकली। सामने ही वो कार में बैठा नजर आया। वो उसे पहचानता था। उसे देखकर मुस्कुराया और गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। उसे देखकर वो मबहूत रह गई। वो निहायत साफ रंग का लंबे कद का एक स्मार्ट लड़का था। उसके बाल उसकी पेशानी पर बिखरे हुए थे। गले में ढीली ढाली टाई झूल रही थी और जिस्म पर मौजूद सूट खासा कीमती दिखाई देता था। वो मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो घबराकर जल्दी से कॉलेज की बस में चढ़कर अपनी सीट पे बैठ गई। उसने चोर नजरों से अपने इर्द गिर्द देखा। कोई लड़की भी उसकी तरफ मतवज्जो नहीं थी। उनकी अक्सरियत अपने मोबाइलों की तरफ मतवज्जो थी। उसने खिड़की से बाहर देखा। वो अभी तक वहीं खड़ा था। नासिर उसे बेहद पसंद आया था। उसके बात करने का अंदाज बहुत दिलकश था। वो इतनी नरमी और अपनायत से बात करता था कि जी चाहता था कि वो बोलता रहे और वो सुनती रहे। उसने अपनी कई सहेलियों के बॉयफ्रेंड्स की मोबाइल में तस्वीरें देखी थी, पर खूबसूरती में वो नासिर का अशर अशीर भी नहीं थे। घर पहुंचकर भी वो नासिर के ख्यालों में ही गुम थी। उसने आईने में अपनी शक्ल देखी। उसे लगा कि वो भी किसी से कम नहीं है। नासिर यकीनन उसकी खूबसूरती से मरूब हो गया था। उसके जदीद अंदाज के कीमती कपड़े और शानदार गाड़ी बता रही थी कि वो किसी अमीर बाप का बेटा है। उसके इल्म में ये बात थी कि अमीरजादों की दिली ख्वाहिश होती है कि उनकी बीवियां किसी फिल्मी अदाकाराओं की तरह हसीनो जमील और स्मार्ट हों, ताकि पार्टियों वगैरह में दूसरे मर्दों पर रोब पड़ सके। अपनी बेवकूफी और कम फहमी की वजह से शाहदा नासिर की खूबसूरती और उसकी अमारात के जाल में फंस चुकी थी। अब हरदम उसे नासिर के फोन का इंतजार रहने लगा। एक रोज नासिर ने उसे तसल्ली दी कि वो कभी उस बात से परेशान ना हो कि उसका ताल्लुक गरीब घराने से है। उसने उसे ये भी यकीन दिलाया कि वो बहुत जल्द अपने घर वालों को रिश्ते के लिए उसके घर भेजेगा। शाहदा को ये सुनकर बहुत खुशी हुई। अपनी खुशी को छुपाते हुए उसने मजनूई फिक्रमंदी से पूछा, अगर शादी इतनी जल्दी हो गई तो मेरी पढ़ाई का क्या होगा? उसकी बात सुनकर नासिर हंसकर बोला, फिर तुम अपने बच्चों को पढ़ाना। उसकी बात सुनकर शाहदा शर्मा गई। नासिर ने फिर कहा, यकीनन तुम ये सुनकर शर्मा गई होगी। काश मैं तुम्हें शर्माता हुआ देख सकता। देखो, तुम मना मत करना। मेरे पास एक स्मार्टफोन बेकार पड़ा है। अगर कभी मिले तो वो मेरी तरफ से कबूल कर लेना। मैं उसमें नई सिम भी डलवा दूंगा ताकि तुम बेफिक्री से तन्हाई में उसे इस्तेमाल कर सको। मेरा दिन तो किसी न किसी तरह गुजर जाता है, मगर रात को तुम्हारी बहुत याद आती है। अपनी कुछ तस्वीरें मुझे भेज दिया करना। जब तक शादी नहीं हो जाती उन्हें देखकर ही दिल बहला लिया करूंगा। और हाँ, शादी के बाद तो मैं कम से कम 1 माह तक काम पर नहीं जाऊंगा ताकि हर वक्त तुम्हें ही देखता रहूं। बस एक बात से मेरी ढास बंधी रहती है कि थोड़े दिनों की ही तो बात है, फिर तो हमारी शादी हो ही जाएगी। ये उससे अगले रोज की बात है। वजाहत का बाप अपनी बीवी को लेकर उनके घर आदम का। वो शाहदा के बाप का बचपन का दोस्त था। इत्तफाक की बात थी कि सालों पहले दोनों दोस्तों की शादियां भी चंद रोज के फर्क से आगे पीछे हुई थी। उस जमाने की रस्म के मुताबिक दोनों दोस्तों ने तय कर लिया था कि अगर एक के घर लड़का और दूसरे के घर लड़की हुई तो वो उन दोनों की शादी करके अपनी दोस्ती को मजीद मजबूत कर लेंगे। उसके दोस्त के यहाँ तो शादी के पहले साल ही बेटा हो गया था, मगर शाहदा 5-6 साल बाद पैदा हुई थी। वैसे तो दोनों दोस्त जिंदगी की मसरूफियात से वक्त निकालकर महीने 2 महीने बाद
एक दूसरे से मिल लिया करते थे, मगर इस दफा बीवी के साथ आमद का मकसद यही था कि बरसों पहले जो बात हुई थी उसको पूरा किया जाए। दोस्त के बेटे का नाम वजाहत था और वो किसी सरकारी इदारे में मुलाजिम था। शाहदा का बाप इस रिश्ते पे ना सिर्फ राजी था बल्कि बहुत खुश भी था। इसके अलावा ये बात भी थी कि दोनों दोस्तों ने उसके बारे में अहद भी किया हुआ था और वो अहद पूरा करने का वक्त आ गया था। अपनी सख्तगीर तबीयत की बिना पर उसने घर में किसी से मशवरा करने की जरूरत भी न समझी और अपना फैसला बीवी को सुना दिया। शाहदा की शादी मेरे दोस्त के बेटे वजाहत से होगी। माँ तो सीधी सादी एक मशरकी औरत थी और शोहर से डर कर रहती थी। उसने उसके फैसले पे सर झुका दिया और शाइस्ता को बाप के फैसले से आगाह कर दिया। ये खबर सुनकर शाहदा पर तो जैसे कयामत टूट पड़ी। उसने आंखों में आंसू भरकर माँ से इस बात पर एहतजाज किया, अपनी अधूरी पढ़ाई का बहाना बनाया, मगर उसकी माँ ने हाथ खड़े कर दिए। मैं तेरे बाप से इस सिलसिले में कोई बात नहीं कर सकती, वो मेरे पीछे पड़ जाएगा। अगर तुझे कोई एतराज है तो जाकर उसी से बात कर। ये बात बस याद रखना कि माँ बाप जो भी करते हैं औलाद के हक में बेहतर ही होता है। उसमें इतनी हिम्मत कहाँ थी कि बाप से बात करती। वो दिल महसूस कर रह गई। एक रोज उसकी माँ और बाप वजाहत के घर जाकर उसे देख भी आए। वजाहत दोनों को बहुत पसंद आया था और यूं ताबूत में आखिरी कील भी गड़ गई। शाहदा ने फौरी तौर पर नासिर से राब्ता किया और ये खबर उसे सुनाई और बोली, नासिर अगर तुम कुछ कर सकते हो तो कर लो, अपने घर वालों को हमारे घर भेज दो, शायद अब्बा मान जाए। लम्हा भर को तो नासिर चुप हो गया, फिर बोला, मेरी अम्मी तो अपनी बहन से मिलने दुबई गई हुई हैं, 2-3 महीने वहीं रहेंगी। तो फिर मैं क्या करूं? मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि अपने अब्बा के सामने जुबान खोलूं, वो बेबसी से बोली। उसकी बात सुनकर दूसरी तरफ खासी देर तक खामोशी रही। फिर नासिर की आवाज आई, तुम शादी करने से मना कर दो। ये मैं नहीं कर सकती, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं। ये कहते हुए शाहदा की आंखों में आंसू आ गए। तुम मेरे अब्बा को नहीं जानते, मुझे उनसे बहुत डर लगता है। शाहदा तुम मुझे ठुकरा रही हो, नासिर ने किसी कदर गुस्से से कहा। अच्छा ऐसा करो कि मौका देखकर मुझसे कहीं मिल लो, मेरी बड़ी बहन सदर के इलाके में रहती है, हम दोनों उनसे मिलने चलेंगे, हो सकता है कि वो कोई हल निकाल ले। इससे पहले भी नासिर ने उससे कहीं बाहर मिलने को कहा था, मगर अपनी फितरी बुज़दिली की वजह से वो उस पर राजी नहीं हुई थी। इस मर्तबा भी वो नासिर के मुतालबे को साफ टाल गई। ज्यादा बेहतर ये होगा कि तुम अपनी बड़ी बहन को हमारे घर भेज दो ताकि वो रिश्ते की बात चलाएं। शाहदा ने दो टोक लहजे में कहा, तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। उसकी बात सुनकर नासिर ने कहा, मैं चाहता हूँ कि बाजी तुमसे एक दफा मिल लें, फिर हम आइंदा का लाए अमल तय कर लेंगे। सॉरी नासिर, ये मैं नहीं कर सकती, मुझे कॉलेज जाने के अलावा कहीं और जाने की इजाजत नहीं है, उसने बेबसी से कहा। उसकी बात सुनकर दूसरी तरफ से फोन बंद कर दिया गया। उसके बाद नासिर ने खुद से फोन नहीं किया। उसने कई बार उससे राब्ता करने की कोशिश की, मगर उसकी हर दफा यही रट होती कि वो उसकी बाजी से मिलने के लिए आमादा हो जाए। शाहदा एक सीधी सादी और डरपोक किस्म की लड़की थी, वो इस बात पर राजी नहीं हुई। 2 हफ्ते भी नहीं गुजरे थे, उसकी शादी बड़ी सादगी से हो गई। शादी के बाद भी नासिर उसके दिल से नहीं निकल सका था। उसे इस बात का भी अफसोस होता था कि नासिर ने उससे शादी के लिए जरा सा भी ताउन नहीं किया था। माँ अगर अपनी बहन से मिलने दुबई गई हुई थी तो वो अपनी बाजी को उनके घर भेज सकता था। दिन गुजरते रहे और अब उसकी शादी को हुए 3 माह बीत चुके थे। इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद उसके दिल में वजाहत के लिए कोई जगह न बन सकी थी। वो ना इससे बात करती थी, ना उसको देखती थी। वो काम पर चला जाता तो उसे एक इत्मीनान का एहसास होता, वो काम से घर आ जाता तो उसे बेकली सी महसूस होने लगती। उसके रवैये से वजाहत हैरत ज़दा तो था, मगर इस सिलसिले में उसने आज तक कोई सवाल जवाब नहीं किया था। उसे वजाहत से नफरत तो नहीं थी, मगर वो उससे मोहब्बत भी नहीं करती थी। वजाहत भी जाने किस मिट्टी का बना था कि उसके बेइल्तफाकी और नजरअंदाजी पर कोई हरफे शिकायत जुबान पर नहीं लाता था। उसने शाहदा से शादी अपने बाप के कहने पर की थी। उसे अपने बाप से बेहद मोहब्बत थी, क्योंकि वो उसके साथ बिल्कुल दोस्तों की तरह रहता था। बाप की खुशी के लिए वो घर में यही जाहिर करता था कि वो उससे शादी से बहुत खुश है। शाहदा बिलाशुबा हुस्न जमाल में यकता थी। सरोकत, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, मुनासिब दहाना, मुस्कुराती थी तो बहुत ही प्यारी लगती थी। हंसती थी तो गालों में गढ़े भी नहीं पड़ते थे, जिसकी वजह से हंसते हुए और भी अच्छी लगती थी। उससे शादी करके वजाहत बहुत खुश था। वो एक शर्मीली तबीयत का लड़का था, इसलिए शादी से पहले उसकी जान पहचान किसी लड़की से नहीं हो सकी थी। एक तो बीवी खूबसूरत और चंदे आफताब चंदे महताब थी, दूसरी बाप की पसंद की थी। वजाहत बहुत ही मुतमईन था, मगर शादी की रात को ही वजाहत को अंदाजा हो गया कि बीवी खोई खोई सी मिली है।
उसने ये सोचकर दिल को तसल्ली दी कि घर वालों से दूरी की वजह से ऐसा होगा। हफ्ता गुजरा तो बर्फ फिर भी नहीं पिघली। ऐसा मालूम होता था कि जैसे शाहदा को दुनिया की किसी चीज से दिलचस्पी नहीं है। वजाहत ने ये बात भी नोट की कि वो उसको खुद से मुखातिब नहीं करती थी। वो कोई बात करता तो जवाब दे देती, वरना खामोश बैठी रहती। उसकी माँ से उसका रवैया अलबत्ता दूसरा था। उसके पास बैठी होती तो खुद से भी बातें शुरू कर देती थी। बहरहाल माँ और बाप दोनों को बहू पसंद आ गई थी। वजाहत ने माँ से भी शाहदा के नामुनासिब रवैये के बारे में एक लफ्ज तक नहीं कहा था। वजाहत नहीं चाहता था कि शाहदा के बारे में कोई मनफी बात करके घर की खुशियों को फिक्रमंदियों में बदल दे। उसे दुनिया वाली चालाकियां भी नहीं आती थी कि वो शाहदा के इस रवैये के मुतालिक अंदाजे कायम करता। दो एक दफा उस पर झंझलाहट भी तारी हुई और दिल चाहा कि उससे पूछे कि वो यूं दूर दूर क्यों रहती है, मगर मुमकिना बदमज़गी की वजह से वो खामोश ही रहा। इन तमाम बातों के बावजूद वो उसे बहुत अच्छी लगती थी। एक दो दफा उसने उससे अच्छी लगने वाली बात का इजहार भी किया, मगर रद्दी अमल में उसका झुका हुआ सर और एक उंगली से बिस्तर की चादर पर खींचती लकीरें ही देखने को मिली। शाहदा के इस रवैये को देखकर उसकी हिम्मत टूट गई और उसने भी खामोशी की राह अपना ली। शाहदा के रवैये की वजह से वो कोशिश करता कि ज्यादातर वक्त अपने दफ्तर में ही गुजारे। छुट्टी वाले दिन वो देर तक सोता और उठने के बाद दोस्तों के पास चला जाता। उसके बारे में मशहूर हो गया था कि वो दुनिया का वाहिद शोहर है जो शादी के शुरू के दिनों में भी दोस्तों को इतना टाइम देता है, वरना दूसरे तो उन दिनों मंजर से ही गायब हो जाते हैं। शाहदा अपनी माँ के घर चली जाती तो वजाहत एक अजीब तरह की बेचैनी महसूस करता। शाहदा माँ के घर जाते वक्त बहुत खुश नजर आती थी और वापस ससुराल आते हुए ये खुशी गायब हो जाती थी। वजाहत ये चाहता था कि वो बस हर वक्त उसकी आंखों के सामने ही रहे, बात करे ना करे, दिखाई तो देती रहे। उसके जाने से उसके दिल पे एक अनकही पसमर्दगी तारी हो जाती थी। उसकी समझ में नहीं आता था कि क्या करे। कभी कभी वो झंझला भी जाता। आज वजाहत शाहदा को उसके माँ के घर छोड़ने आया। उसकी माँ अपने दामाद से बड़े तपाक से मिली और बहुत सी दुआएं दी। इतनी देर में शाहदा उसके लिए चाय बना कर ले आई। वो चाय पीकर खामोशी से रवाना हो गया। वो उसे छोड़ने दरवाजे तक भी नहीं आई। वजाहत चला गया तो हर माँ की तरह शाहदा की माँ ने भी ये अंदाजा लगाने की कोशिश की कि बेटी ससुराल में खुश है या नहीं। वैसे तो उसकी माँ जब भी उससे मिलने के लिए ससुराल जाती वो महसूस करती थी कि उसकी सास ससुर का रवैया शाहदा के साथ ठीक ठाक ही है। अलबत्ता इस बात पर उसे हैरत होती थी कि वो वजाहत का बिल्कुल तस्करा नहीं करती थी। इस बात से उसकी माँ के दिल में तशवीश की एक लहर दौड़ जाती, मगर वो सोचती कि एक आध बच्चा होने के बाद वो बदल जाएगी और अपने मियाँ के करीब हो जाएगी। शायद नए माहौल की वजह से वो ऐसी हो गई है। शाहदा जब भी घर आती उसकी माँ को बहुत खुशी होती थी। वो आज भी थोड़ी देर तक उसके पास बैठकर बातें करती रही, फिर दोपहर के खाने की तैयारी में लग गई। शाहदा टीवी खोलकर बैठ गई। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी थी। अचानक वो हैरत से गुम होकर रह गई। टीवी में नासिर को दिखाया जा रहा था। उसके हाथों में हथकड़ियां लगी हुई थीं। डर और खौफ उसके चेहरे से आया था। उसके साथ उसके 4 साथी भी उसी हालत में खड़े थे। उन साथियों में एक लड़की भी थी जिसने अपने चेहरे को चादर से छुपा रखा था। पास ही कुर्सियों पर साइबर क्राइम की टीम के अरकान बैठे हुए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक डिप्टी डायरेक्टर इस वाकये की तफसील बता रहा था जिसकी वजह से उन लोगों को पकड़ा गया था। शाहदा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और कानों में साई साई सी होने लगी थी। उसने जल्दी से उठकर दरवाजा भेड़ दिया और दोबारा बिस्तर पर बैठकर टीवी की तरफ मतवज्जो हो गई। वो नासिर को देखे जा रही थी जिसका चेहरा सता हुआ था और उस पर हवाइयां उड़ रही थीं। डिप्टी डायरेक्टर बता रहा था कि इस गिरोह के ये लोग मुख्तलिफ हरबों से नौउम्र लड़कियों को अपने जाल में फांसकर पहले उनसे दोस्ती करते, फिर उन्हें दोस्ती का झांसा देकर अपनी साथी लड़की के फ्लैट पर बुलाकर उनकी नाजेबा फिल्में बनाते और बाद में उन फिल्मों की तशहीर करने की धमकी देकर वो उन्हें ब्लैकमेल भी करते थे। नासिर एक खुशशक्ल नौजवान था। उसके झांसे में आकर कुछ लड़कियां अपना सब कुछ लुटा देती थी, क्योंकि ये उन्हें अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से मुतासिर करके ये यकीन दिला दिया करते थे कि वो जल्द ही उनसे शादी कर लेगा। इस मुआशरे में नासिर जैसे शैतान सिर्फ लोगों की एक बड़ी तादाद पैदा हो गई है। ये मजबूर, बेकस और अच्छी जिंदगी गुजारने के लालच की ख्वाहिशमंद लड़कियां ढूंढकर उन्हें शीशे में उतार कर तबाह कर देते हैं। इस तरह के कामों में मुलव्वस लोगों की भी दर्जा बंदी है। उनमें से चंद तो महज अपनी तस्कीन और दोस्तों पर रोक डालने के लिए एक साथ कई कई लड़कियों से दोस्ती करते हैं। दूसरे नासिर जैसे हैवान और बेजमीर लोग होते हैं। ये लोग भोली भाली और इंडियन ड्रामों और फिल्मों से मुतासर लड़कियों को अपने जाल में फांसकर उन्हें अपना जरिया मुआश बना लेते हैं। वो न सिर्फ उनकी काबिल एतराज फिल्में बाहर के मुल्कों में बेचकर रकम कमाते हैं, बल्कि उन लड़कियों को भी डरा धमका कर उनसे भी रकम ऐंठते हैं।
अगर लड़कियां रुपए ना दें तो ये उन्हें धमकी देते हैं कि वो सारे सबूत सोशल मीडिया पर लगा देंगे। इस काम के लिए उन्होंने किराए पर एक फ्लैट ले रखा था और इसी फ्लैट में लड़कियों को लाया जाता था। नासिर मुतासर लड़कियों से ये कहता था कि ये फ्लैट उसकी बड़ी बहन का है। बेवकूफ लड़कियां उसकी बात का यकीन कर लेती थी। वो ये कहकर उन्हें उस घर में बुलाता था कि उसकी बहन उसकी होने वाली बीवी से मिलना चाहती है ताकि फैसला कर सके कि वो लड़की उसके भाई के लिए मुनासिब है भी कि नहीं। वो लड़की उसकी बहन नहीं बल्कि उस मकरूह धंधे में मुलव्वस उन लोगों की साथी है। जिन लड़कियों को ये लोग ब्लैकमेल करते थे उनसे वो उनकी सहेलियों के मोबाइल नंबर भी जबरदस्ती हासिल कर लिया करते थे। फिर नासिर एक मुहज्जब और शाइस्ता नौजवान बनकर उनसे राब्ता करता और थोड़े ही दिनों में उनके मजीद शिकार पैदा हो जाते। साइबर क्राइम के डिप्टी डायरेक्टर ने यह भी बताया कि मुजरिमों को पकड़ने की ये सारी कार्रवाई फरखंदा नामी एक लड़की की शिकायत पर अमल में लाई गई थी। वो उन लोगों की ब्लैकमेलिंग के हाथों सख्त परेशान थी। वो किसी स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी जहाँ से उसे 15,000 रुपए माहाना मुशाहरा मिलता था। उस 15,000 रुपयों में से उसे हर माह 5,000 रुपए नासिर को देना पड़ते थे। वो लड़की दुनिया में अकेली थी। कुछ अर्सा पहले उसकी माँ का इंतकाल हो गया था। वो अब उसे अपने मजमूम मकासद के लिए बाहर किसी मुल्क भेजना चाह रहे थे। वो उन हालात से बहुत तंग आ गई थी और फिर उसने एक बहुत अच्छा फैसला कर लिया और हिम्मत करके कानून से मदद हासिल की। उसकी निशानदही पर उस फ्लैट पर छापा मारा गया और वहां से कई जदीद कैमरे, 4 लैपटॉप, बहुत सी हार्ड डिस्क और दूसरी काबिल एतराज अशिया बरामद कर ली गई हैं। वहां से कुछ ऐसी सुकून बख्श अद्वियात भी मिली थी जो ये लोग लड़कियों को मशरूबात में डालकर पिलाते थे। ये दवाएं उनके आसाब पर असर डालकर उनके सोचने समझने की सलाहियत सल्ब कर लेती थी। लैपटॉप में सैकड़ों लड़कियों की मकबूल अखलाक तस्वीरें और फिल्में मौजूद हैं। शाहदा दम बखुद बैठी ये तमाम बातें सुन रही थी। जब टीवी में कैमरा रक्षुंदा नामी लड़की पर आया तो बावजूद इसके कि उसने नकाब से अपना चेहरा छुपा रखा था, शाहदा ने उसे उसकी आंखों से पहचान लिया। वो उसकी बचपन की सहेली फरखंदा ही थी। उसे एहसास हो गया कि नासिर ने कहीं उसे रक्षंदा के साथ देख लिया होगा और डरा धमकाकर उसका मोबाइल नंबर ले लिया होगा। शाहदा को झुरझुरी सी आ गई। वो जिल्लत और रसवाई के गड्ढे में गिरने से बाल बाल बची थी। अब उसे अपना सख्त गिर बाप और बाप के हुक्म पर सर झुका देने वाली माँ बहुत अच्छी लग रही थी। उसके जहन में ये बात भी आई कि माँ बाप अपनी औलाद के लिए जो भी करते हैं अच्छा करते हैं। माँ बाप के फैसलों पर अमल करके औलाद को जिंदगी भर एक तहफ्फुज हासिल रहता है और किसी भी बुरे वक्त में उनकी हर तरह की हमायत और मदद मैसर होती है। दुनिया में तो कदम कदम पर भेड़िए नुमा इंसान मौजूद हैं जो अपने फायदे और नफसानी ख्वाहिशों की तकमील के लिए दूसरे मासूम इंसानों को इंतहाई अजियतनाक तकलीफों से दोचार कर देते हैं और अक्सर तो अपना जुर्म छुपाने के लिए कत्ल जैसे घिनौने काम से भी बाज नहीं आते। उनकी बातों में आकर कैसे कैसे सारे हाथ जन्म लेते हैं। अच्छी खासी जिंदगी जहन्नुम का नमूना बन जाती हैं। खानदानों की इज्जतें खाक में मिल जाती हैं और ऐसा महज इसलिए होता है कि अपना फायदा नामुनासिब तरीकों से अच्छी जिंदगी गुजारने का लालच और भेड़ की भेस में भेड़िए जैसे लोगों की चिकनी छुपी बातों में आकर बहुत सी नासमझ लड़कियां उनके जाल में फंस जाती हैं। अब टीवी पर फरखंदा का बयान चल रहा था। उसने बड़ी तफसील से नासिर और उसके दोस्तों के जराइम का पर्दाचाक किया था। आखिर में उसने इस बात का एतराफ भी किया कि नासिर की धमकी के नतीजे में उसने भी अपनी एक सहेली का मोबाइल नंबर उसे दे दिया था, जिसका उसे बेहद अफसोस था। मगर खुशी इस बात की थी कि वो सहेली उस शैतान के जाल में नहीं फंसी थी। शाहदा ने लरसते हाथों से रिमोट उठाकर टीवी बंद कर दिया और बिस्तर पर गिर पड़ी। वो इस बात पर शुक्र अदा कर रही थी कि वो एक बहुत बड़ी तबाही और बदनामी से बच गई थी। वो सोचने लगी कि लड़कियों के लिए दुनिया में सिर्फ माँ बाप, बहन भाई और शोहर ही होते हैं जो उन्हें तहफ्फुज देते हैं। बाकी गैर तो सब बेदर्दी से अपना मुफाद निकालना जानते हैं। तमाम लड़कियों को माँ बाप, भाई बहनों और शोहरों की इज्जत को मुकद्दम रखना चाहिए क्योंकि ये सब उनके मुहाफिज होते हैं। जब इन सब की इज्जत को मुकद्दम रखा जाएगा तो तभी इन इंसानुमा भेड़ियों और शैतानों से महफूज रहा जा सकता है। थोड़ी देर बाद जब उसकी हालत संभली तो उसने अपना वही छोटा सा मोबाइल उठाया और वजाहत का नंबर मिलाने लगी। नंबर मिला तो उसके कुछ कहने से पहले ही उसके कानों में वजाहत की हैरत भरी आवाज आई। शाहदा, खैरियत तो है? कैसे फोन किया? उसने बोलने की कोशिश की तो आवाज जैसे हलक में अटक गई। उसने खंकार कर गला साफ किया और बोली, छुट्टी के बाद आकर मुझे ले जाइएगा। मेरा दिल नहीं लग रहा है। मुझे आप, अम्मी और अब्बा बहुत याद आ रहे हैं। ये कहते कहते उसकी आवाज भर गई थी। दूसरी तरफ चंद लम्हों तक तो खामोशी छाई रही। फिर उसके कान में वजाहत की शोख आवाज सुनाई दी। भाड़ में जाए छुट्टी, मैं अभी आ रहा हूँ। जी अच्छा, मैं तैयार बैठी हूँ। शाहदा ने अपने आंसू जब्त करते हुए एक दिलफरेब हंसी के साथ कहा और फोन बंद कर दिया। अपना सामान बैग में डालते हुए वो सोच रही थी कि अपने माँ बाप और शोहरों की इज्जतों का ख्याल रखने वाली लड़कियों की जिंदगी कितनी काबिल रश्क होती है।
وہ شادی سے پہلے اپنے ماں باپ کے گھر میں بڑی عزت اور احترام سے وقت گزارتی ہے اور شادی کے بعد مرتے دم تک اپنے شوہر کے گھر میں۔ وہ لڑکیاں جو اپنی عزت کے ان رکھوالوں کی قدر نہیں کرتی، ناصر جیسے شیطان اور درندہ صرف لوگ قدم قدم پر گھات لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ میں ہمیں لازمی بتائیے گا۔ اس کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر لازمی کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی لازمی دبا دیجیے گا۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔